लाइट स्विच ऑन कर सकते हैं ऐतिहासिक थे 1935 से लेके आई थिंक 1940 उस समय आसपास में बहुत इतिहास लिखा है। भारत का भी इतिहास लिखा है। In one of his books, The Complete Story of Civilization or Oriental Heritage, published in 1935, this was his observation. He says, the Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history, world history. Islamic historians and scholars have recorded with great glee and pride the slaughters of Hindus, forced conversions, abduction of Hindu women and children to slave markets, and the destruction of temples carried out by the warriors of Islam from 800 AD to 1700 AD, that is 900 years. Millions of Hindus were converted to Islam by sword during this period. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precarious thing, whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without, from outside, or multiplying from within. The Hindus had allowed their strength to be wasted in internal division and war. They had adopted religions like Buddhism, which unnerved them for the tasks of life. This was in 1935. American historian talking about the kind of genocide that Hindus had undergone. Next, please. As we all know, Islamic invasion in India started in 711 CE, that is Common Era, with the Muhammad bin Qasim attacking Sindh. And Hindus fought so valiantly. It took 1,000 years for the present day Pakistan to become Muslim majority. That means every year they could not advance more than 2.5 kilometers on an average. That was the level of heroic resistance and fight by Hindus. However, there is one important thing. जो पाकिस्तान तक जो भूभाग है वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया था, बट रेस्ट ऑफ इंडिया जो बाकी भारत वो हिंदू मेजॉरिटी था। यहाँ वो लोग जो राज चला रहे थे फिर भी यहाँ हिंदू मेजॉरिटी था। परंतु बंगाल में यहाँ से 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर दूर से जो पूर्व साइड में वहां मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया। ये बीच में पूरा हिंदू मेजॉरिटी था। ये पूरा एकदम विचित्र बात है। ये कैसा हुआ उसका बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। बंगाल का ऊपर जो इस्लामिक दुराक्रमण जो हुआ पहले बार 1204 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी, वो सेना जो डायनेस्टी था, राजवंश था, उसको मार के वो वहां राज स्थापन किया 1204 अभी तक कितना 820 वर्ष पहले। परंतु बंगाली हिंदूज they fought as valiantly as other Hindus, and for 300 to 400 years they fought so much that the Muslim population up to 16th century was minuscule, बहुत कम होता। जितना जो बख्तियार खिलजी और जितना जो मुस्लिम राजा लोग ने जो उसका दुराक्रमण जो ये किया था, फिर भी उसका जो मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ नहीं पाया, बड़ा up to 300 to 400 years, but things changed from 16th century. This is India map. आपको दिख रहा है ये जो ऊपर बोल है that is पाकिस्तान साइड है, ईस्टर्न इंडिया जो मुस्लिम मेजॉरिटी बना था। साइड में अभी जो बांग्लादेश है, इस साइड में भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी बना है। अभी सरप्राइजिंगली
कि विश्व में अरबों के बाद बंगालियों सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। विचित्र की बात है। But how did this happen? How did so much Muslim population emerge in Bengal, so distant from Middle East? अब अरब से मक्का मदीना से देखिए इतना दूर है, इवन पाकिस्तान से भी 2000 किलोमीटर दूर है। How did this emerge? But whereas in other parts of India, South India, middle, जो मध्य भारत और इवन जो गंगा बेल्ट और जो हिमालय, ये सब में तो कोई ये मुसलमान मेजॉरिटी नहीं हो पाया। कैसा हो? इसके बारे में एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, तो पहले भी जो विल ड्यूरेंट था 1935 वो भी अमेरिकन हिस्टोरियन था। अभी जो रिसेंटली जो लिखा है वो भी एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। वो एक पुस्तक लिखा है द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर 1204 to 1760। उसमें वो लिखा है that in a typical genre of what he said, the typical genre of Islamic apology and negationism, that means कुछ नहीं हुआ है, ऐसा फोर्स कन्वर्शन है, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं हुआ, ऐसा बोल के जो चल रहा था ये। He theorizes out of thin air that Islam in Bengal was not a product of forced conversion, but a matter of environmental, socio-economic and temporal specificity of Bengal in 16th century। बोलते हैं 16th सेंचुरी 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक मुसलमान मेजॉरिटी नहीं बन पाए बंगाल में, परंतु 16th सेंचुरी हुआ है। और उसका कारण ये बोलते हैं वो जो सामाजिक कारण, वो पर्यावरण के कारण, इस आर्थिक कारण, इसी कारण से वो वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी बना है। ये सब इससे सबसे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। बट द क्वेश्चन इज, जो 16th सेंचुरी में जो पर्यावरण थे, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थे, वो सब तो इससे पहले भी था, उस समय क्यों नहीं बन पाया? और उसके बाद में बंगाल का जो सराउंडिंग एरिया, उधर असम, इधर बिहार, इधर उड़ीसा, ये इस एरिया में भी जो सामाजिक परिस्थिति, जो पर्यावरण है, एक ही है, एक ही है, उधर इतना तो अंतर नहीं है। So my point is that Bengali Muslims, whether they are in Bangladesh or in India, they are not product of peaceful conversion. They are product of forced conversion. But how did this forced conversion happen? Question is, जब 300 साल जो हिंदू बंगाली हिंदू ने इतना जो दुराक्रमण को जो प्रतिघटन किया है, विरोध किया है, युद्ध किया है, परंतु वो 16th सेंचुरी से 300 साल के बाद ये क्यों हुआ है? इसका कारण ये है, मैं क्षमा करता हूं सभी हिंदू बंधुओं को और बाकी सभी को। क्यों? हम सच जानना चाहिए। इतिहास का मतलब है सच जानना चाहिए। जब हम सच जानते ही हैं, जब हम सच जानते हैं, उसी then only we can find solution। अगर कारण का मूल कारण क्या है, किसी समस्या का मूल कारण क्या है, जब हमको जानकारी नहीं मिलता है, हम उसको समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। इसमें किसी का मेरा ये नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी, ये बहुत, मैं उसको बहुत मानता हूँ। मैं उसका जो, मैं जब मणिपुर में काम कर रहा था, DIG CRPF, जो 2005 से 2006 तक, उसका एक चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा ये शिष्य था, शांति दास। हमने एक गांव को जो प्रतिष्ठा, वहां जो स्थापन किया था, बिकॉज CRP कैंप वहां लगवाया था, उस गांव का नाम मैं शांति खुनाव नाम में उसको दिया था, बिकॉज मैं उसको मानता हूं। मैं सो देयरफॉर आप किसी अलग मत सोचना, मैं जब जो ऐतिहासिक जो विषय है सच बोल रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी ने वो 1486 में उसका जो जन्म हुआ था और 1534 में उसका जो देहांत हुआ था, वो भक्ति जो मार्ग, इसको बहुत पॉपुलराइज किया था। क्यों उसको किया था, उसका बाद उसका ये मीटिंग में वो चर्चा करने का नहीं है, बट वो बंगाल में इतना पॉपुलर हो गया था, दैट मीन्स they started worshipping, that is Hare Rama, Hare Krishna, Hare Ram, खाली हरे कृष्ण हरे राम भी नहीं,
हरे कृष्ण वो भजन कीर्तन उसे ये सब किया था। और वो डिस्प्रोपोर्शनेट इंपॉर्टेंस जो भक्ति मार्ग का जो अत्यंत उसको प्राधान्यता दिया था, इतना पॉपुलर हो गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण हमको क्या बताया? तीन जो उसका संतुलन है, जो त्रिगुणास त्रियोगास। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो त्रिगुणास त्रियोगास त्रिमार्गास, दैट मीन्स सत्व रज तमो, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। ये सब ये भगवान श्री कृष्ण ने बोले ये तीनों जो है ये समाज को, व्यक्ति को संतुलन रखता है। सपोज आप देख लीजिए, हम खाना में खाली मीठा खाए डेली, क्या हो जाता है? षड रुचि होना चाहिए, सभी रुचि खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। वैसा ही सभी मार्ग, तो सभी गुण, ये सब होने से ही समाज या व्यक्ति उसका एक संतुलन रोके, एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम होता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ये रज गुण और तमो गुण को पूरा एकदम वो निगेट कर दिया, बोले केवल भक्ति मार्ग करना है। इसका कारण से क्या हुआ कि बंगाल सोसाइटी बिकेम एफेमिनेट, उसका तो निर्वीर्य हो गया समाज को। पूरा समाज को जो फाइटिंग स्पिरिट था, जो लड़ाई करने का जो मन था, वो सब हो गए, जो सब बंद हो गया। और भी बिकेम बंगाल सोसाइटी निर्वीर्य हो गया था, दुर्बल हो गया था, डोसाइल हो गया था। इट इज बिकॉज ऑफ दैट जो 16th सेंचुरी में जब चैतन्य महाप्रभु का जो वो आया था, उस समय से बंगाली हिंदूज स्टॉप्ड फाइटिंग मुस्लिम्स, एंड देन हिंदू डाउनफॉल स्टार्टेड इन बंगाल, and it is from that only we have now Bengal, the Muslim majority emerged in Bengal. Next please. कौन ऐसा ये इस विश्व में जो सोलंकी जी ने जो सोलंकी जी है, चला गया, ओके, he has given को अच्छा कविता भी बताया। इस विश्व में शांति को कौन स्थापित कर सकते हैं? जो बलशाली कर सकते हैं, दुर्बल लोग का नहीं, कभी नहीं कर सकते। अब जंगल में आप सिंह या आपको व्याघ्र, ये दोनों ही शांति स्थापन कर सकते हैं। और ये छुआ नहीं कर सकते, ना तो ये हिरण नहीं कर सकते, ना जो बकरा कर नहीं, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो जिसके पास बल है वही कर सकते हैं। परंतु दिस इज व्हाट हमारा देवी देवता ने बताया है। उसका जो हमारा जितना देवी देवता का मूर्ति देखिए, उसका हाथ में किसी न किसी एक आयुध रहता है। भगवान शंकर के पास त्रिशूल रहता है, भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र रहता है, और माता काली के पास कितना आयुध रहता है। तो उसका मतलब ये है, समाज कभी निर्वीर नहीं होना चाहिए, निरायुध नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति भी निरायुध नहीं होना चाहिए। ये फाइटिंग स्पिरिट दैट वी मस्ट फाइट फॉर व्हाट इज आवर्स। ये धर्म हमारा है, हम धर्म के लिए लड़ाई करने के लिए आगे आना चाहिए। परंतु ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो भक्ति मार्ग, केवल भक्ति, वो रज और तमो गुणों का जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था, और होने से इसका जो दुष्परिणाम क्या होता है, बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश जो वहां जो खड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ हिंदू डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट प्लीज। फिर मैं जो विल ड्यूरेंट जो पहले जो बोला था, सेम थिंग। अब अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान 50-100 साल का अंदर में वो मुसलमान इस्लामिक सोसाइटी बन गया। तो जब इस्लामिक दुराक्रमण हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, जो उस समय गांधार बोलते थे, वो गांधार के ऊपर जो हुआ था, वो 50-100 साल के अंदर पूरा जो मुसलमान बन गया। परंतु
बाकी जो प्रांत सिंध, बलूचिस्तान, अभी जो पंजाब, ये सब तो करने के लिए 1000 साल लगा। क्यों? वहां हिंदू थे। अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट बन गए। बुद्धिस्ट पैसिफिक रिलीजन है, अहिंसा परमो धर्म, धर्महिंसा तदैव च। वो खाली ऊपर वाला लाइन लेके चला है और नीचे वाला लाइन वो भूल गया था। धर्महिंसा तदैव च वो भूल गया था। उसी वजह से अफगानिस्तान 100 साल का अंदर मुसलमान बन गया, whereas it took 1000 years for rest of India, particularly northwest India, to become Muslim majority. So next please. And then so therefore जो डॉक्टर मुनि जी यहाँ है, मैं उसका थ्रू में और आलोक जी कुमार जी का माध्यम से, उसका माध्यम से मैं वो अनुरोध करता हूँ, जितना हमारा जो प्रवचन हो रहा है, हमारा जो गुरु प्रवचन का जो देते हैं, कभी भी मत बोलना है अहिंसा परमो धर्म। जब बोलना है तो वो सेकंड स्टैंजा भी बताइए। हिंदू समाज को निर्वीर्य मत कीजिए, हिंदू समाज को बलोपेत कीजिए। और माताओं, जब जितना माताओं है, आपका बच्चा लोग को भी वो ये डराना नहीं है। ऐसा नहीं है उसको तो दुष्कर्म करने के लिए आप प्रोत्साहित करें, मैं ये नहीं बोलता हूँ। उसका जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है बताइए, बट उसका साइमल्टेनियसली उसको बताना भी है, जो जब ये कोई चीज, कोई वस्तु आपका है, आप उसको रक्षा करने के लिए आप लड़ाई करना है, ये बताना चाहिए। देन हिंदू जीनोसाइड इन 1947, जो पार्टीशन का सामने आता हूँ, बीच में तो बहुत साल हो गए। मुस्लिम लीग तो 1947 तक पूरा हेल बेंड ऑन मुस्लिम लीग चाहते थे, जो स्वाधीनता संग्राम जो होने का समय, वो चाहते थे हम पाकिस्तान बनाना चाहिए, मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरियाज है हम पाकिस्तान बनाना चाहिए, और कांग्रेस उसको अपोज किया था। 19 जनवरी 1946 में इलेक्शन हुआ था। पूरा जो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था, उस समय उस इलेक्शन में 9 out of 10 Muslims, that means every 10 Muslims, that means अगर 10 मुसलमान लेके, that means 90% of the Muslims they voted for Pakistan। जनवरी 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, 90% of the Muslims voted for creation of Pakistan। तो डेटा ये है। परंतु जब भारत का विभाजन हुआ था, 90% of the Muslims stayed back in India। इसका कारण क्या है वो तो बहुत है आपको। और नेक्स्ट प्लीज। उसी समय जब भारत का विभाजन हुआ था, अलग अलग एस्टिमेट करते हैं 2 लाख से लेके 20 लाख तक जो लोग को मर गया था। और उसके एग्जैक्ट फिगर तो बिकॉज उसका स्टडी तो ठीक नहीं हो पाया, बाकी जो एविडेंस भी नहीं है। तो इवन दो 2 लाख से लेके 20 लाख में, उसमें से अधिकांश लोग हिंदू थे। क्यों हिंदू थे? बिकॉज जब 90% मुसलमान यहाँ रह गया है, इधर से उधर जाने वाला कम है, बट सब लोग उधर से जो आने वाला था हिंदू, उसको they were waylaid, abducted, raped and killed। एंड हमारा संविधान कल थे संविधान का जो दिवस, हमारा संविधान में एक शब्द भी नहीं है कि भारत का विभाजन हुआ था। अगर जो संविधान आप पढ़े उससे ये पता लगता है भारत का भी विभाजन नहीं हुआ था। Next please. Then when it comes to the 1971 में जो सेकुलर जो शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी शेख हसीना जी का जो पिताजी, वो बांग्लादेश लिबरेशन का जो बहुत लड़ाई करते थे, परंतु उसका इतिहास क्या है? वो मुस्लिम लीग का लीडर थे। 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया, दैट मींस डू और डाई, डायरेक्ट एक्शन,
पाकिस्तान चाहिए, उसका ये एक रूपकल्पना करने वाला जो रूपकल्पना किया था, उसमें से ये भी एक मेंबर था, शेख मुजीबुर रहमान। और जो कलकत्ता, नौखाली और उस एरिया में जो 10,000 से अधिक हिंदुओं को मारा गया था, उसका आर्किटेक्ट भी यही था। तो विजय जालिदी ने बोला था that India helped Bangladesh formation. Definitely we have midwifed Bangladesh formation. जो बांग्लादेश में उस समय एक मुक्ति वाहिनी बोल के बनाया था, मुक्ति वाहिनी, that means liberation force. That liberation force was under the control of Sheikh Mujibur Rahman. जब 1971 में जो लड़ाई चल रहा था, पाकिस्तान आर्मी किल्ड 30 लाख लोग, 30 लाख हिंदुओं को, 3 million, 30 lakh in 10 months period. That means average per month 3 lakhs. That means per day कितना होता है देखिए। परंतु जिस मुक्ति वाहिनी को हमने खड़ा कर किया था, भारत खड़ा किया था, वो लोग कभी भी एक हिंदू को भी बचाने के लिए प्रयास कभी नहीं किया। जो डॉक्टर विजय जालिदी ने बोला था क्यों हम किया था, फिर जो वो लोग क्यों हमारा जो क्यों why are they not grateful to us? So this is the history of Mukti Bahini. This is the history of killing of Hindus in Bangladesh during Bangladesh liberation. And not only that, even till today, वो उसका ऊपर जो अत्याचार, वो जो प्रकार उत्पीड़न, जो प्रकार नरसंहार को तेलुगु में जो हम बोलते हैं मारण होमम, दैट मींस जो यज्ञ चला रहा है जो हिंदुओं को मारने का, ये आप देख लीजिएगा। दिस इज द फिगर्स, पॉपुलेशन फिगर, जो जनसंख्या का फिगर्स है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान साइड, अभी पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, आज लेस देन 1.2, 1% आसपास में। That means 1947 जो अभी कितना साल हो गया, आई थिंक अराउंड 76 years, 76 years में 13% पॉपुलेशन came down to 1.2 in Pakistan, Hindu population. And Bangladesh में जब 1947 में 23% पॉपुलेशन थे, आज 8% है। 15% population has been killed, converted or destroyed, annihilated. This is the level and scale of Hindu genocide. Simultaneously, मुसलमान का जो previous slide please, Muslim percentage in Pakistan it went up from 84% जो 1947 में था, जो भारत का जो विभाजन हुआ था, अभी 96.6, और वैसे ही जो बांग्लादेश में उस समय 76% था, आज 91% मुस्लिम है। Next please. Then there is a second issue, बृहत्तर बांग्ला। कोई सुना था इसमें? आई थिंक बंगाली लोग कुछ है ना यहाँ, कोई है बंगाली लोग? बृहत्तर बांग्ला, दैट मीन्स ग्रेटर बांग्लादेश, बृहत बंगाल। ये पिछले 100 साल से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम बंगाल, वो सब लोग ये चाह रहा है बृहत्तर बांग्ला बनेगा, ग्रेटर बंगाल। उसका इवन जो सुभाष चंद्र बोस जी का उसका यंगर ब्रदर, छोटा भाई शरद चंद्र बोस, वो भी उसका समर्थन दिया था उस समय। ही वाज सीपीआई लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लीडर थे, जो सुभाष चंद्र बोस का जो छोटा भाई। और ये बृहत्तर बांग्ला क्या है? बृहत्तर बांग्ला उड़ीसा से लेके, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अभी जो पश्चिम बांग्ला और बांग्लादेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सब एरिया वो चाहते हैं
ये मुस्लिम कंट्री होना चाहिए। I'll complete in 2-3 minutes. So एक छोटा घटना हुआ था। एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला बोल के असम का उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे, बट चीफ मिनिस्टर। वो क्या किया था, बांग्लादेश से मुसलमान को लेके वहां असम में वो सेटल करने के लिए वो एक स्कीम स्टार्ट किया था। दैट स्कीम नेम इज ग्रो मोर राइस। वो स्कीम को जो लॉर्ड वेलेल उस समय जो वाइसराय था, वो बोला ये ग्रो मोर राइस नहीं है, ये धान फैलाने के लिए ग्रो मोर मुस्लिम्स है। So that was the kind of thought they have, long-term vision. Then अभी जो कुछ लोग मुझे पूछ रहा था, when I was working in Manipur and also in कलकत्ता में IGCRP रहा, जब इतना जो अत्याचार हो रहा है तो हिंदू बांग्लादेश छोड़ के भारत को क्यों नहीं आते? बहुत लोगों को तो ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, बट इसको नहीं आने देंगे। Hindus in Bengal and Pakistan are under constant vigil। कारण क्या है? एक तो वो वहां से इधर आने से जो बृहत्तर बांग्ला नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अगर उधर से हिंदू इधर आके जो बॉर्डर एरिया में अगर सेटल हो गया तो ये बॉर्डर एरिया विल नॉट बिकम मुस्लिम मेजॉरिटी। सो दे ओनली सेंड Muslims as illegal immigrants to India. That is why today, as per the UN population report, more than 4 crore Bengali Muslims are residing in India.